Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 2, Meaning and Fundamentals of Double Entry Bookkeeping. So let's start with the topic, from where this system has been generated. So this system is generated by Luca di Borgo Basilio. On 10th November 1494, this system was generated. Therefore, it is celebrated as International Accounting Day. And this system says that every transaction have two aspects. One is debit and another is credit. Methods of accounting like Indian system and English system, they are basically two systems of accounting, and in English system there are further two division, that is single entry system and double entry system. Let's discuss the Indian system, which is the oldest system in our country. In this system, the records are maintained in Indian languages. It is also called as Mahajani Deshinama system. And here, long red books are kept, which are called as Bahi Khata and Kird. This is not a scientific accounting system because यहाँ पर complete principles follow नहीं किए जाते हैं. Though there are two sides here also, Jama and Nama side, but but then too it is not completely scientific, and it is used for small businesses only. Now, if we talk about English system, it is further divided in two parts, and single entry system is a cash system where all the cash recordings are done. No accrual basis is there. Therefore, it is an incomplete recording system, and we cannot give a accurate information while following this system. Therefore, a most appropriate, very strong system emerged, which is called as double entry system. This is the most scientific method in which there are twofold effects of each transaction, that is debit and credit, and both debit and credit should always have equal amount. Because of these two-fold effect, many errors are being excluded and we can have a complete information about our accounting. Therefore, we will start discussing double entry system, and later on we will learn single entry system also. Let's see the definition of double entry system. Every business transaction has two-fold effect, and that it affects two accounts in opposite directions. So two accounts are being affected, and if a complete record is to be made each such transaction, it would be necessary to debit one and credit another account. It is this recording of twofold effect of every transaction that has given rise to term double entry. तो double entry system इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ twofold effect है, डेबिट और क्रेडिट. हम प्रिंसिपल से अगर डबल एंट्री सिस्टम के देखें तो सबसे पहली चीज, देयर मस्ट बी मिनिमम टू इफेक्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. टू अकाउंट्स मींस वन इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट्स एंड अदर इज गिवर ऑफ बेनिफिट. ओके, इसीलिए तो कहा जाता है ये दोनों दो अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे तो आप इस बात का मतलब अच्छे से समझेंगे. If one account is debited, other account is credited. Every debit has a equal and corresponding credit. इसका मतलब ये है कि जितने अमाउंट से हम किसी चीज को डेबिट करेंगे तो दूसरा अकाउंट उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होगा. अब यहाँ पर देख लीजिए आप, हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम किस तरह से वर्क करता है. ये है, यहाँ पर हर ट्रांजेक्शन के डुअल इफेक्ट दिए जाते हैं. तो हम यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल चैप्टर में डुअल इफेक्ट्स फाइंड आउट करेंगे. देन हम लोग जर्नल प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में लेजर बनाना सीखेंगे और उनकी बैलेंसिंग सीखेंगे. देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाया जाता है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, और ये प्रोसेस जो है ये ब्रेक नहीं होता है. जर्नल से ही लेजर बनता है, लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंट्स. Now, let's see advantages of double entry and bookkeeping.
इट हैव कंप्लीट रिकॉर्ड बिकॉज हम ट्रांजैक्शन के दोनों साइड्स रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ये कंप्लीट रिकॉर्ड है। इसमें एक्यूरेसी होती है क्योंकि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है, तो इफ वी हैव मेड एनी मिस्टेक इन डेबिट साइड वी कैन फाइंड इट थ्रू क्रेडिट साइड एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर बिजनेस के रिजल्ट्स निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि हमारे पास सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ये कॉमनली एक्सेप्ट किया जाने वाला सिस्टम है। इसका रीजन यही है कि ये साइंटिफिक है, इसमें रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है और इसमें एक्यूरेसी मैक्सिमम होती है, गलतियों के चांसेस कम से कम होते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंट की, क्योंकि हमने अभी सब जगह पढ़ा है कि हर ट्रांजैक्शन के डुअल इफेक्ट होते हैं और डुअल इफेक्ट के साथ टू ट्रांजैक्शंस अफेक्ट होते और डुअल इफेक्ट के साथ टू अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज एन अकाउंट। An account is summarized record of transaction affecting one person, one kind of property, or one class of gain or loss. It is given by J.R. Bartley Boy. We have one more definition that says an account is a ledger record in a summarized form. So I will underline this summarized form of all transactions that have taken place with a particular person or thing specified. तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दिया है कि हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं विच इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग, फिर उस रिकॉर्डिंग को हम समरी में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम समराइज करेंगे तो यू प्रिपेयर different accounts on different pages, like एक पेज पर आप सारी सैलरी लिखेंगे, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई पूरे साल की। एक पेज लेंगे उस पे आप सारी परचेसेस लिखेंगे। एक पेज पर आप सारी सेल्स लिख सकते हैं। एक पेज पर आप अपने डेटर्स क्रेडिटर्स के बारे में लिख सकते हैं, लाइक राम से अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यू विल मेक अ राम्स अकाउंट। सिमिलरली अगर आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं यू विल प्रिपेयर अ कमीशन अकाउंट। तो इस तरीके से हम अलग अलग पेज पर समरी बनाते हैं अलग अलग चीज की, ताकि हमें पता लगे कि हमारे पूरे साल में कितनी परचेस हुई, पूरे साल में हमने कितना सैलरी पे किया, पूरे साल में कितनी सेल्स हुई है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट हमारा क्या फाइनल रिजल्ट रहा है। तो ये जो इंडिविजुअल नेम्स हैं हर पेज के हेडिंग जो है इट इज कॉल्ड एज अकाउंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लेजर रखा है। यहाँ पर एक हेडिंग देने का ऑप्शन है जहां पर आप हेडिंग लिखेंगे सैलरी, सेल्स, नेक्स्ट पेज पर परचेज, फिर और इसके अलावा आगे आगे हमारे बिजनेस में रिलेवेंट जितने भी अकाउंट्स हैं हम वो सभी यहाँ प्रिपेयर करेंगे। और इस तरीके से हम लोग जो है अकाउंट क्या होता है उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले उसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।